Yes. Good morning, dear audience. Myself, Nilesh Suryavanshi, a faculty of zoology. I have total teaching experience of 11 years, and from last 9 years, in last 9 years, I was working in Akash. So today we will discuss one topic from the zoology, and the name of topic is circulatory system. Today we will discuss just introduction of circulatory system and somewhat about the structure of heart. We know in human body the various systems are working like excretory system, nervous system, digestive system, immunity system, excretory system. So like this, the circulatory system is also very important system of the body. The main function is circulation of body fluids, mainly blood. तो जो भी कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन फंक्शन होता है बॉडी में, एंड दैट मेन फंक्शन इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन. Transportation is very important because without transport, body cannot perform any function. For example, what substances should be transported through the body? The important substance like nutrients, they should be transported from digestive system to each and every cell. जब तक न्यूट्रिएंट्स ईच एंड एवरी सेल तक नहीं जाते तब तक ऑब्वियसली एनर्जी नहीं बन पाएगी, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा. फॉर दिस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वी आल्सो रिक्वायर द रेस्पिरेटरी गैसेस. So transportation of O2, CO2 is also necessary. Transportation of different hormones is also very necessary for growth and development. We will discuss the role of hormone in endocrine system. Along with this, the next important substances like the nitrogenous waste substances, which are toxic substances. So whatever the metabolic toxic substances, yeah, unnecessary metabolites, they should be excreted from the body. And for their excretion, for their removal, they should be transported to excretory organs like kidney. So in this way, the transportation of these important substances is necessary from one organ to other organ. And for this, here in animals, there is a circulatory system. Transportation is done, occur in plants and animals in different ways. Obviously, we know in the plants they having vascular system. उनमें क्या होता है? Vascular system होती है, vascular bundles होते हैं, in which we will study xylem and phloem. Xylem mainly water and minerals transport करते हैं. Phloem जो होता है वो food transport करता है. Mechanism of transport, this is takes place with a different way than that of animal. So in plants, they have vascular system, xylem and phloem. And in case of animals, if we see in case of animals, the animals having circulatory system for the transportation of these important substances. If we see the basic type of circulatory system, so in kingdom animal, we already studied the two main types of circulatory system. The first one is open circulation and the closed circulation. दो टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, ओपन एंड द क्लोज. ओपन सर्कुलेशन किसमें होता है? इट इज प्रेजेंट इन द इनवर्टिब्रेट्स या इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, नॉन कॉर्डेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स हो गया, सम मोलस्का हो गए. They having the open circulation in which there is blood vessels are absent, capillaries are absent. Blood is flowing through ओपन चैनल ऑफ ब्लड वेसल्स. ओपन वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं, बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ रहता है, इसलिए उनके बॉडी कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं. हीमोसील इज द ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी. बट इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेशन, एज द नेम इंडिकेट, ब्लड यहाँ पे कंटिन्यूसली क्लोज चैनल के थ्रू फ्लो होता है. ब्लड वेसल्स के किधर भी बाहर ब्लड आता नहीं है. ब्लड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग थ्रू द क्लोज चैनल ऑफ ब्लड वेसल्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. For example, just we can say suppose this is the heart. तो हार्ट से ब्लड निकलेगा, प्योर ब्लड. मान लो वो किसी ऑर्गन में चला गया, किडनी वगैरह में किसी ऑर्गन में चला गया, तो वहां पे जाने के बाद जो भी कुछ ब्लड वेसल है उनके ब्रांचेस बनेंगे, उनका नेटवर्क बनेगा. एंड वो नेटवर्क बनने के बाद वही नेटवर्क के ब्लड वेसल्स बाद में ज्वाइन होके एज ए क्या करेंगे, वहां पे वेन फॉर्म करेंगे. वो वेन अगेन टू द हार्ट रिटर्न आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे.
तो यहाँ पे पूरा क्लोज चैनल दिख रहा है ब्लड वेसल का, ब्लड किधर भी बाहर नहीं आ रहा है, blood is never coming out from the blood vessels, it is continuously flowing through the closed channel of blood vessels, so called as closed circulation. The basic difference we are discussing in the animal kingdom in the criteria of classification or in case of arthropods and annelids में जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम की ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन या कौन से फाइलम में कौन सा सर्कुलेशन होता है, here we have to directly discuss, here we have to discuss mainly the closed circulatory system. The study of closed circulatory system is called as angiology. Yes, what we call it as angiology. Angiology, angio refer to close. Plants में भी angiosperms होते हैं. Angiosperm किसको बोलते हैं हम? Angio means close, sperma means seed. तो जिनके seeds fruits के अंदर proper close होते हैं, they are called as angiosperm. तो जनरली एंजियो टर्म किसलिए यूज किया जाता है? क्लोज थिंग्स को. तो यहाँ पे भी क्लोज सर्कुलेशन से स्टडी ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम एंजियोलॉजी बोलते हैं. हु डिस्कवर दिस क्लोज सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट विलियम हार्वे, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एंजियोलॉजी. विलियम हार्वे. इफ यू सी द कंपोनेंट्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट. The first most important organ, heart. Next, the fluid type of connective tissue which is pumped by the heart and flowing through the blood vessels is called as blood. And next one is the closed channel जिनके थ्रू ये blood flow होता है, which are blood vessels. Closed circulatory system के अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स आते हैं, हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल. इसमें से अभी शॉर्टली हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखेंगे. ठीक है, ओके. सो हार्ट बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा बॉडी का? हार्ट. ऑब्वियसली जब भी कभी डॉक्टर के पास हम जाते, छोटा मोटा कोई जस्ट इन्फेक्शन हो गया, फीवर है, सर्दी है, खांसा, सबसे पहले हार्ट रेट चेक करते रहो, बिकॉज फंक्शन ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट इज मेन ऑर्गन. If the heart is dead, person is directly declared as a dead. Even the brain is working. If the brain is dead, we cannot declare person as a dead. हम उसको कोमा या ब्रेन डेड कंडीशन जनरली बोलते हैं, कोमा कंडीशन बोलते हैं. उसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन फंक्शन या मोस्ट ऑफ द ब्रेन फंक्शन लॉस हुआ रहता है, बट स्टिल हार्ट इज पंपिंग. हार्ट अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है. It is a myogenic in nature. We will discuss later on what is mean by myogenicity, autorhythmicity क्या होता है. तो हार्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. जब तक वो काम कर रहा है तब तक पर्सन लिविंग है. इफ द हार्ट स्टॉप वर्किंग देन वी जस्ट डिक्लेयर पर्सन एज अ डेड. सो देयरफॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ठीक है, हार्ट. यस, मेन फंक्शन क्या होता है? इट जस्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन. ब्लड को पंप करने का काम करता रहता है. कंटिन्यूअसली ब्लड प्रेशर उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है. ब्लड को सर्कुलेशन में रखने का काम करता है. पंपिंग फोर्स गेट जनरेटेड बाय द हार्ट इट्स. If you see the basic other we can say parameters, heart size of heart कितना होता है? Generally the size of heart is equal to the person's own closed fist. हर एक पर्सन का अपना जितना क्लोज फिस्ट का जितना साइज होगा उतना ही हार्ट का उसके साइज होता है. जस्ट कोरिलेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज वेट ऑफ हार्ट. जनरली वेट ऑफ हार्ट इज अराउंड 250 to 350 ग्राम. ठीक है, 250 to 350 ग्राम इन वेट. Next, if we see the external structure, anatomy, morphology of the heart. तो morphologically या external structure में हम क्या क्या बोल सकते हैं? Generally, heart is conical muscular organ होता है. थोड़ा सा conical shape होगा. Yes, muscular organ होता है. In tissue chapter, we already discussed heart made up of specialized tissue called as specialized muscle called as cardiac muscles, which are exclusively present in the heart. ठीक है, कोनिकल मस्कुलर. और क्या बोल सकते हैं हम? हॉलो ऑर्गन. अंदर से हॉलो होता है ना, तभी तो ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट होता है. सो कोनिकल मस्कुलर हॉलो ऑर्गन. ठीक है. इफ यू सी द लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? द हार्ट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, यस, इट इज प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होगा, दो लंग्स के बीच में. सो इन बिटवीन लंग्स. वो भी कहाँ पे? इट इज more on left side of the body. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? more on left side of the body. लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा टिल्टेड होता है. तो पोजीशन ऑफ हार्ट अगर हम देखेंगे तो जो भी कुछ दोनों भी लंग्स होते हैं अपने,
दोनों लंग्स के बीच में बराबर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड ज्यादा होता है। उस लेफ्ट लंग के अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है, कैविटी होता है, जिसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। इट इज कॉल्ड एज कार्डियक notch where heart is located. So this is the, we can say, location of the heart, position of the heart. If we see the other remaining structure, तो जो भी कुछ heart होता है, अगर important organ है obviously, so it should be well protected. So if we see the protection to the heart, so how heart is protected? It is well protected by the rib cage. जो भी कुछ अपना थोरेसिक कैविटी में रिब केज होता है, इस रिब केज हार्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ हार्ट के बाहर या हर एक ऑर्गन के बाहर जनरली क्या होता है, यस, सम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के या कनेक्टिव टिश्यू के कुछ कवरिंग होते हैं। सो लाइकवाइज हार्ट के बाहर भी कुछ कवरिंग होते हैं। दिस कवरिंग्स आर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। तो रिब केज बोनी कवरिंग है, एंड हार्ट के वॉल के बाहर भी कुछ कनेक्टिव टिश्यू के कवरिंग है, जिनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो हार्ट इज वेल प्रोटेक्टेड विद द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के नाम कौन से होते हैं? द आउटर वन इज कॉल्ड एज parietal pericardium. What it's called as? It's called as parietal pericardium. and जो इनर हार्ट को अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एज visceral pericardium. Parietal and visceral, the two pericardial coverings are there. In between them there is a पेरिकार्डियल स्पेस। वहां पे पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? दिस एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। जब हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान इन मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। तो फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए उनके बीच में क्या होगा, देयर इज अ फ्लूइड इज प्रेजेंट व्हिच प्रिवेंट देयर, यस, wearing and tearing. Wearing and tearing. After that, next, if we see about the internal structure of the heart, so internally अब हमें देखना हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इंटरनली हार्ट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? हार्ट के अंदर वेरियस चेम्बर्स होते हैं, हार्ट के अंदर वेरियस सेप्टम होते हैं, हार्ट के अंदर वेरियस ब्लड वेसल्स वहां पे ओपन होते हैं, एंड हार्ट के अंदर वेरियस वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्स क्या करते हैं? जो भी कुछ हार्ट का या जो भी कुछ ब्लड का फ्लो होगा, उस ब्लड को फिर से पीछे नहीं आने देते। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द हार्ट। तो वॉल्स का मेन फंक्शन होता है बैक फ्लो प्रिवेंट करना। जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमें धक धक या साइंटिफिकली मेडिकली उसको हम लब डब बोलते हैं, दिस लब डब साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्सफुल क्लोजिंग ऑफ दैट फ्लैप। तो ये जो फ्लैप वॉल ओपन क्लोज होती है, इसके से हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो इफ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, तो इंटरनली हम देखेंगे शॉर्ट में हार्ट के अंदर कौन कौन होता है। सपोज दिस इज द हार्ट, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट के अंदर चेम्बर कौन से होते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। ऊपर के जो 2 चेम्बर है, दे आर कॉल्ड एज एट्रिया, एंड जो नीचे के जो चेम्बर होते हैं उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये हमने देख लिया, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। सेम ऑन दिस साइड, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपली डायग्राम से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे एट्रिया स्मॉलर है, वेंट्रिकल लार्जर है। एट्रिया जनरली ब्लड को रिसीव करते हैं फ्रॉम वेरियस ब्लड वेसल, एंड जो भी कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं, दिस वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड। कैसे करते हैं हम देखते हैं अभी ब्लड वेसल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चेंबर, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो होता है उसमें 2 ब्लड वेसल ओपन होते हैं। एक होता है सुपेरियर वेना कैवा, एंड दूसरी बैक साइड से, पीछे के साइड से आती है, दिस इज इंफेरियर वेना कैवा। ये दोनों भी वेना कैवा, वेन मतलब डीऑक्सीजनेटेड CO2 ब्लड लेके आते हैं इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ पे अब CO2 रिच ब्लड आएगा फ्रॉम सुपेरियर वेना कैवा एंड द इंफेरियर वेना कैवा। ये दोनों भी सुपेरियर वेना कैवा
अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, इंफीरियर वेन क्या हुआ, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगा। अब ये ब्लड आएगा नीचे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है इनटू द लंग्स ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड जो ब्लड वेसल वो ब्लड लेके जाती है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इट्स कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में जा रही है इसलिए पल्मोनरी। अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, ऐसे ब्लड वेसल्स को हम जनरली आर्टरी बोलते हैं, जो ब्लड हार्ट से दूर लेके जाते हैं। सो कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, गोज टू द लंग्स एंड कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड व्हाट आर ब्लड इज CO2 रिच, डीऑक्सीजनेटेड। अब बाजू में ही लंग्स है, वहां पे उनका क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। ऑक्सीजनेशन के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम, जो ब्लड वेसल्स वहां पे ब्लड लाते हैं उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। लंग्स से आ रहा है इसलिए पल्मोनरी, टूवर्ड द हार्ट आ रही इसलिए वेन। ऑल वेन्स में जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ऑल आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये पढ़ेंगे हम बाद में। लेफ्ट एट्रियम से अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरे बॉडी में बाय द लार्जेस्ट एंड द थिकेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक एओर्टा। तो ये जो एओर्टा होती है, ये एओर्टा क्या करेगी, टेक अ टर्न ओवर द पल्मोनरी आर्टरी एंड कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ओवरलैपिंग पोर्शन हम मिटा देंगे, अपने आप एक प्रॉपर अच्छा डायग्राम बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते तो डायग्राम विल बी आल्सो ओके। सो दिस ब्लड वेसल्स इज सिस्टेमिक एओर्टा या फिर सिंपली aorta. This aorta is the largest and the thickest artery, and obviously it contain oxygenated blood. अभी oxygenated ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में जाएगा। ये दो ब्रांचेस ऊपर हेड वगैरह ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, एंड दिस इंफीरियर ब्रांच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो in this way, this is the, we can say, very rough and or the short idea about the circulation of the blood. So from the diagram here we can get idea about the blood vessels, chambers. ये जो स्ट्रक्चर में साइड में ड्रॉ किया, these are the walls. We will discuss about walls later on. So this is sufficient for today's topic. This is the rough idea about the structure and function of heart. अब इसमें हम ECG देखते हैं, कार्डियक साइकिल देखते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम है, और कुछ कोरोनरी साइनस हो गया, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, जो हार्ट के खुद के ब्लड वेसल्स है, हार्ट काम कैसे करता है, यहाँ पे कॉर्डी टेंडन ही क्या होते हैं, पैपिलरी मसल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे रिमेनिंग स्ट्रक्चर आते हैं। But this is, we can say, simple and short introduction about structure and function of heart. Okay. Yes, okay. Thank you. Thanks to all.